ہیں آپ کا مجموعہ کلام کرن کرن تبسم، یادوں کی کہکشاں، نثری مجموعہ شکار اور آصف مترجم بھی ہیں اور مضمون نگار بھی ہیں، شمالی امریکہ کے مشہور اور مقبول شاعر ہیں، اس کے علاوہ معروف اینکر اور کئی ادبی تنظیموں کے روح رواں بھی ہیں۔ جی حشمت سہیل صاحب۔ جی حاضر ہوں میں، تمام احباب کو سلام پہنچے، اور میری ایک کتاب کرن کرن تبسم جو یہ ہے مزاحیہ شاعری کی اور یادوں کی کہکشاں، دوسری کتاب میں نے نثر میں لکھی یادوں کی کہکشاں، اور تیسری کتاب نثر میں نے شکار اور آصف، میں نے شکار بہت کھیلا ہے، تو وہ کرونا کی نظر ہو گئی، ابھی تک اس کا کوئی اجرا نہیں ہوا۔ بہرحال میں مزاحیہ نظم ایک فقیر کا تجربہ پیش ہے۔ ایک تھا فقیر جاتا تھا جو روز مانگنے مسجد کے اور مندر و گرجا کے سامنے، ملتی تو تھی رقم بسر اوقات کے لیے، کافی نہیں تھی جو گزر اوقات کے لیے۔ ایک دن پہنچ گیا وہ کسینوں کے سامنے، اللہ کے نام پر لگا خیرات مانگنے، جو آ رہے تھے جیب کو خالی کیے ہوئے کہ وہ تو خود ہی صورت سائل بنے ہوئے، لیکن جو آئے جیت کے پیسے لیے ہوئے، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، ڈوبے ہوئے تھے جسم و دل و جان شراب میں، نئے ہاتھ باغ پر تھے نہ پاتے رکاب میں، دیکھا فقیر کو تو بڑھا جیت کا خمار، دیتا تو کوئی ایک کوئی دو تو کوئی چار، ایک اور آیا جس کا کہ نکلا تھا جیک پاٹ، عرش پر دماغ نرالا تھا ٹھاٹ باٹ، مٹھی میں نوٹ بھر کے وہ خیرات کر گیا، سائل کی بھوکی جھولی کو منہ تک وہ بھر گیا۔ آخری دو شعر ہیں۔ پیسے ملے فقیر کو ایک دم جو اس قدر، کھلا وہ آسمان کی جانب اٹھا کے سر، تو بھی ایک خوب ہے میرے رزاق دو جہاں، دیتا پتے کہاں کے رہتا ہے تو کہاں۔ واہ 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 واہ، جی، اور دو شعر اور سن لیجئے۔ ایک دن بیگم مجھ سے بولی تم بالکل بیگانے ہو، پڑوسی کیسا پیار کرے ہیں، پڑوسن سے تم بھی دیکھو، کیا تم ایسا کر نہیں سکتے، دل کو ادھر مائل تو کرو۔ میں نے کہا میں تو راضی ہوں، پڑوسن بھی تو راضی ہو، بس جی سبحان اللہ سبحان اللہ، شکریہ شکریہ، بہت اچھے، بہت حسن بھائی کو سنائیں منظر پور کا مشاعرہ سنائیں یا شکاگو کا طوفانی مشاعرہ سنائیں۔ جی شکاگو کا طوفانی مشاعرہ، بھائی یہ شکاگو تیز ہواؤں کا شہر ہے جی، اور 68 نمبر پہ ہے۔ تو ہمارے دوست حامد امروی صاحب، مشہور شاعر، نعتیہ
کلام کہتے ہیں، اور انہوں نے مشاعرہ برپا کیا یہاں پر بیرن پارک میں، انہوں نے ٹینٹ لگا کر مشاعرہ کیا تھا. اس کے آپ کا مضمون پڑھنے کی بات آنے والی ہے. علی عمران پلیز آپ کیا بیک گراؤنڈ میں کیا بات ہے ہو رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جی کہیے اشون بھائی، کہیے اشون بھائی. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. شکاگو کا طوفانی مشاعرہ غالب کے مصرے سے شروع کیا ہے. منظور ہے گزارش احوال واقعی، اب داستان سنیے شکاگو کی ایک نئی. یہ ہے جناب لطف بھرا ایک تذکرہ، یعنی ہوا تھا ٹینٹ لگا کر مشاعرہ. اس بزم میں تھا حضرت حامد کا انتظام. انوائٹڈ تھے سارے ہی شعرائے خوش کلام، تھے اہل ذوق اہل ادب ماہر زباں. ساری کریم شہر کی موجود تھی یہاں، شاعر سبھی تھے ابر گوہر بار کی طرح. ہم بھی وہاں تھے سایہ دیوار کی طرح. بزم سخن پہ آنے لگا تھا بڑا نکار، اٹھتی تھی واہ واہ کی آوازیں بار بار. ذرا پانی پی کر چلو. یہ میری تصویر نہیں آ رہی. یہ حال تھا کہ تیز ہوئی یک بیک ہوا، ہر سمت کالے بادلوں کی چھا گئی گھٹا. جب کچھ نہیں شکاگو کے موسم کا اعتبار، یہ تو وہی مثل ہوئی آ بیل مجھ کو مار. ہم داد شیر سنیے، ہم داد شیر دے ہی رہے تھے اٹھا کے ہاتھ، کہ آدھا مصرع اڑ گیا باد صبا کے ساتھ. انہوں نے گو شروع کیا اپنا جل ترنگ، لیکن نہ پھیکا پڑ سکا بزم سخن کا رنگ. خیمے جو اڑ رہے تھے تو کھمبے ہٹے ہوئے، کافر گھٹا کے سامنے مومن ڈٹے ہوئے. کیا بات ہے جناب، بہت شکریہ. میں چاہوں گا بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ ذرا سا ہمارے پاس تھوڑا وقت کا مسئلہ ہے، تو اگر ہمارے دوست ساتھی ذرا سا وقت کا خیال کر لیں گے تو ایک دوسرے کو پڑھنے کا پورا موقع مل جائے گا. کیونکہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ جان رہے ہیں کہ ہم نے جو وقت دیا ہے اس کے اگر اسٹیپولیٹ ٹائم ایک ہم کا خیال نہیں کریں گے تو پھر بڑا سبھی لوگ پھر وقت کا زیادہ استعمال کریں گے. میں نے تو دو ہی پہ نظموں پہ ختم کر دیا تھا. اب یہ چلے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ذرا وقت شکریہ. ٹھیک ہے نا. شکریہ. بہت شکریہ اشرف صاحب، بہت شکریہ اشرف صاحب. اچھا جی، اب خوبصورت خواتین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. شابین ظرافت میں انجم عثمان صاحبہ، ان کا تعلق کراچی سے ہے، بہت ہی پروکار شخصیت ہے. ان کا شعری مجموعہ الاچ کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، بہت ہی اچھا لکھنے والی ہیں. انجم عثمان صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنی مزاحیہ تخلیق پیش کریں. جی انجم عثمان صاحبہ. بہت شکریہ. انمیوٹ کیا، انمیوٹ کریں، آپ انمیوٹ کریں. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ کنٹینیو کیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر یقین نہ ہے تو کوئی افواہ سنا کے دیکھیں، ابھی ہم افواہ کنفرم کر دیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اپنی اس باوقار محفل میں مجھے مدعو کیا. میں ایک مختصر سا کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گی.
یہ جو ہمارے پیر ہوتے ہیں، جو جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کہا گیا کلام ہے. جی جی مرشد دلاری صرف اوہام ہو گئی، مرشد دلاری صرف اوہام ہو گئی، حجرے میں صبح آئی وہیں شام ہو گئی، حجرے میں صبح آئی وہیں شام ہو گئی. مرشد تمہاری ریش مبارک کمال ہے، مرشد تمہاری ریش مبارک کمال ہے، کل تھی سفید آج کیا فام ہو گئی، کیا بات. آج کیا فام ہو گئی. ہے نیک بیبیاں سبھی رقصاں تمہارے ساتھ، ہے نیک بیبیاں سبھی رقصاں تمہارے ساتھ، بیوی کسی کی تھی جو دلارام ہو گئی، بیوی کسی کی تھی جو دلارام ہو گئی. بہت شکریہ. ڈنڈے لگا کے جنجو اتارا نسیم کا، ڈنڈے لگا کے جنجو اتارا نسیم کا، وہ بے نیاز گردش آلام ہو گئی، وہ بے نیاز گردش آلام ہو گئی. بہرے علاج تم نے لگایا گلے اسے، بہرے علاج تم نے لگایا گلے اسے، کیوں خام خواہ مریدنی بدنام ہو گئی، کیوں خام خواہ مریدنی بدنام ہو گئی. مرشد فضیلتوں کی جو دستار سر پہ تھی، مرشد فضیلتوں کی جو دستار سر پہ تھی، 99 کروڑ میں نیلام ہو گئی، 99 کروڑ میں نیلام ہو گئی. کیا بات. مرشد کھلایا مرغ مسلم و شیر مال، مرشد کھلایا مرغ مسلم و شیر مال، اس کی تو آستانے پہ جیرام ہو گئی، تو آستانے پہ جیرام ہو گئی. چندہ دیا نہ دیکھ چڑھائی مرید نے، چندہ دیا نہ دیکھ چڑھائی مرید نے، یہ بات اس کی قابل دشنام ہو گئی، یہ بات اس کی قابل دشنام ہو گئی. بہت شکریہ. مرشد خراب چال چلن تو ہے آپ کا، مرشد خراب چال چلن تو ہے آپ کا، یہ بات اب زبان زدے عام ہو گئی، یہ بات اب زبان زدے عام ہو گئی. انجم سخن تراز متانت سے گو رہی، انجم سخن تراز متانت سے گو رہی، ایسا نہیں نزاح میں ناکام ہو گئی، ایسا نہیں نزاح میں ناکام ہو گئی. بہت خوب. بہت بچہ شکریہ. میں سنجیدہ کہتی ہوں، اس لیے نظام میں میرا یہی ایک کلام ہے. بہت خوب. کیونکہ آپ نے اپنے وقت سے کم استعمال کیا، آپ چاہیں تو ایک آدھ سنا سکتی ہیں مزید. آپ نے اپنا وقت کیونکہ پورا نہیں لیا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. لیکن میں سنجیدہ کہتی ہوں، میں نزا کہتی نہیں. یہ خاص آپ کے پروگرام کے لیے کہا ہے میں نے. بہت شکریہ. بہت ابھی شکریہ 2 عثمان منٹ. صاحبہ. بہت شکریہ. جو چلیں کتبی لطیفہ پیش کری ہوں. کسی نے مولانا شوکت علی صاحب سے پوچھا آپ کے بڑے بھائی کا تخلص گوہر ہے، دوسرے بھائی کا جوہر ہے، تو آپ کا کیا تخلص ہے؟ تو مولانا صاحب نے فوراً جواب دیا شوہر. بہت خوب. ہماری اگلی مہمان ہے آمنہ عالم صاحبہ. آمنہ عالم صاحبہ کا تعلق کراچی سے ہے. ان کے 2 شعری مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں، خوشبو سے لکھی پرد اور شعور کی دستک. کومل لہجے کی شاعرہ ہیں. آمنہ عالم صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. جی آمنہ عالم صاحبہ. بہت شکریہ عذرا وسیم. ہم بھی مذاق وہ نہیں ہیں، سنجیدہ شاعری کرتے ہیں. یہ عارف مصطفیٰ صاحب کی فرمائش پہ اس طرف آئے ہیں. پیش خدمت ہے گاڑی ڈیزل کی، یہ آج ہی یہ نظم ہوئی ہے. جناب صدر کی اجازت سے ڈیزل پہ ہی ہنسی آ جاتی ہے. ناصف صاحب اگر موجود ہیں، حکیم ناصف سے ان کی اجازت سے پیش کرتے ہیں. جو حزب اختلاف نے گاڑی بنائی ہے،
जो हिस्ब इख्तिलाफ ने गाड़ी बनाई है, हर चीज मांग तांग के इसमें लगाई है। शीशे नहीं अगरचे पताले हैं डोर के, शीशे नहीं अगरचे पताले हैं डोर के, ढाला है किस्म किस्म के पुर्जों को जोड़ के। टायर किसी के हैं तो किसी ने हवा भरी, टायर किसी के हैं तो किसी ने हवा भरी, माशाल्लाह। पानी तलब करेगा ये इंजन घड़ी घड़ी। वाह वाह। टायर किसी के हैं तो किसी ने हवा भरी, पानी तलब करेगा ये इंजन घड़ी घड़ी। खाने की खास तौर पर डिग्गी लगाई है, खाने की खास तौर पर डिग्गी लगाई है। दिल के करीब इनके बहुत नान बाई है, दिल के करीब इनके बहुत नान बाई है। पाए हलीम और निहारी पजोर है, पाए हलीम और निहारी पजोर है। तजवीज फोरमे की अभी जेर और है। सुर्खे भी लेके आए हैं अंडे उबाल के, सुर्खे भी लेके आए हैं अंडे उबाल के। शौकीन इनके साथ हैं कई शीर माल के, शौकीन इनके साथ कई शीर माल के। खाने में इनको अब के पर मुश्किल ये आई है, खाने में इनको अब के पर मुश्किल ये आई है। इनमें फिशारे खून बहुत सौ का हाई है, खाने में इनको अब के पर मुश्किल ये आई है। इनमें फिशारे खून बहुत सौ का हाई है। खाएंगे लोग अब के भी मगर नून के बगैर, खाएंगे लोग अब के भी पर नून के बगैर। जोड़ी यूं ही रहेगी हनीमून के बगैर, खाएंगे लोग अब के भी मगर नून के बगैर। जोड़ी यूं ही रहेगी हनीमून के बगैर। कुछ शौक में मरी के हमराह आए हैं, कुछ शौक में मरी के हमराह जाएंगे। नोटों की बू को सूंघ के धक्का लगाएंगे, कुछ शौक में मरी के हमराह जाएंगे। नोटों की बू को सूंघ कर धक्का लगाएंगे। हारन है नून लीग के पीपी बजाएंगे, हारन से नून लीग के पीपी बजाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गाड़ी चलाएंगे, हारन से नून लीग के पीपी बजाएंगे। डीजल के जोर पर सभी गाड़ी चलाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिजाज भी हो, सियासत भी है भाई। मंजरनामा एक साथ में दावत भी थी इसमें। आरिफ भाई के मुंह में पानी आ गया। बहुत नवाजिश। लीडर हमारी फौज की गोदों में ही पले, लीडर हमारी फौज की गोदों में ही पले। उंगली पकड़ पकड़ किसी जर्नैल की चले, लीडर हमारी फौज की गोदों में ही पले। उंगली पकड़ पकड़ किसी जर्नैल की चले। लाई जो फौज आए जो वो ले चली चले, लाई जो फौज आए जो ले चली चले। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से आए ना। लीडर हमारी फौज की गोदों में ही पले। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैंने कहा ना साहसी मंजरनामा पेश कर दिया। वाह वाह माशाल्लाह। तंजीम साज तन को बजाया गया था यूं, तंजीम साज तन को बजाया गया था यूं। शौकीन आ गए कई साजी न छोड़ के, इस आशिकी में इज्जते लीडर चली गई, इस आशिकी में इज्जते लीडर चली गई। क्यों कर वजू कराएगा दामन निचोड़ के। वाह 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 वाह, इसको पड़ेंगी घर में भी अब जूतियां बहुत, इसको पड़ेंगी घर में भी अब जूतियां बहुत। आया था अपनी जौज से वादों को तोड़ के, तंजीम साज तन को बजाया गया था यूं।
शौकीन आ गए कई साजी न छोड़ के। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। आमना आलम के बारे में आलम साहब, अपना आलम के बारे में इतनी वजाहत और कर दूं कि इन्होंने अपनी शायरी में जो संजीदा शायरी है उसमें कई तजर्बात भी किए हैं। साइंसी नज़में इनकी इसमें शामिल हैं, वो पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। और खुद एक बज़्म है, बज़्म साइंसी अदब, ये उसकी भी मोतमिम खाजिन है और माशाल्लाह उसका हफ्तावार प्रोग्राम होता है, कोई 300 के करीब प्रोग्राम उसके हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत मसरूफ। अरे भाई आपका माइक म्यूट हो गया है, दोबारा से आइए, माइक अनम्यूट कीजिए आप। कर दिया। हाँ मैं अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी आ रही है आवाज आ गई। आमना आलम का बहुत शुक्रिया। ये उनके कलाम की खास खूबी ये है कि मज़ाहिया कलाम तो उन्होंने अब कहना शुरू किया। मेरे मुतालबे पे गुज़िश्ता एक प्रोग्राम हमारा हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो उसमें हमने कहा था इनसे और इन्होंने वहाँ पे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए थे। तो ये इस हवाले से उनका ये दूसरा प्रोग्राम है, वरना तो ये संजीदा शायरी में अपनी धूम मचा चुकी है। बहुत अच्छा। इनके 2 मजमूए हैं और एक मजमूए के अंदर तो इन्होंने साइंसी कलाम का तजर्बा भी किया है, बड़ा कामयाब तजर्बा। और एक बज़्म है बज़्म साइंसी अदब, ये उसकी खाजिन भी हैं और हफ्तावार प्रोग्राम उसके होते हैं। और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल है 300 प्रोग्राम तक हफ्तावार हो चुके हैं। इसलिए उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ। आमना आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ आखिर तक मौजूद रहिएगा। ये इमरान अब आप कहिए, शुरू कीजिए। जी इमरान जी मैं सुन रहा हूँ सर, आप शुरू कर रहे हैं। अजरा आप आइए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आमना आलम साहिबा। हमारी शामिल ज़ाफ़त की अगली मेहमान है निशात यास्मीन साहिबा। निशात यास्मीन साहिबा का ताल्लुक कराची से है। इनकी 3 किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं, अम्मा नामा, तीसरा किनारा, सुर्ख लकीरें, दूरियां और गुर्बतें। जी निशात यास्मीन साहिबा, निशात तो इन बसात की कलियां बिखेरे। जी निशात यास्मीन साहिबा। शुक्रिया अजरा वसीम और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं हमारे। माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें सुनने के बाद एक नशा सा छा गया था और आमना ने तो कमाल ही कर दिया। और अंजुम उस्मान माशाल्लाह अगर आपने पहली बार कहा है तो बहुत खूब कहा है। अच्छा आरिफ भाई आपका भी शुक्रिया सबका। तो यह है कि मैंने एक अपनी किताब अम्मा नामा से एक मजमून मुंतखब किया था और मैं अभी सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सास इसका उन्वान है। बकौल हमारी अम्मा के सास कभी माँ नहीं बन सकती, ये बात वो अपनी बेटियों को रुखसती के वक्त अच्छी तरह समझा देती थी। ये और बात के बेटी की समझ में कुछ नहीं आता था क्योंकि ये वक्त अम्मा के फरमूदात समझने का नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ ये फिक्र लगी होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप और ज्वेलरी और जोड़ा कितना खूबसूरत है। हमें भी अम्मा से जो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ था उसका खुल्लम खुल्ला इजहार करने की हम में हिम्मत कहाँ थी। अब ये कोई चीज़ता तो है नहीं कि समझ ना आ सके। ये सांप और सीढ़ी के खेल जैसा मामला है। कभी गोट चढ़ गई, कहीं से सामने निकल लिया। अब यही देख लें कि हमारी अम्मा सिर्फ हमारी अम्मा है और भाभी की सास है। अब भाभी की सास हमारी अम्मा तो बन सकती हैं, मगर हमारी अम्मा भाभी की अम्मा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। फोन की घंटी बज रही थी। हमें घनघरस से अंदाजा हो गया कि अम्मा का फोन है। हम आटा गूंद रहे थे इसलिए लपक का फोन ना उठाया। हमने अपने आटे में सने हाथ झटपट धोए और फोन उठा लिया। इतनी देर में हमारी अम्मा को इख्तिलाजे कल्ब का दौरा पड़ने में सिर्फ एक आंच की कसर रह गई थी। घबरा कर बोली, चंदा मेरी जान कहाँ थी? इतनी देर में तो हमारा दिल हौल गया। वैसे आपस की बात है, हमारी अम्मा दूसरों का दिल हौलाने वाली हस्ती हैं। हमने कहा, अम्मा हाथ खाली न थे, हम आटा गूंद रहे थे। अम्मा मियाँ साहब को सलवाते सुनाने लगी जिनका मौका उन्हें अल्लाह मियाँ ने दिया था। लुब्बे लुबाब ये था कि मियाँ साहब को घर के लिए कुल वक्ती नौकर रखना चाहिए था। ससुराल वाले तो दूसरे की बेटी को नौकरानी समझते हैं। हमने कहा, अम्मा ससुराल में है कौन? एक टुटट्टू मियाँ साहब, वो भी बेचारे सिर्फ रात को घर में खाना खाते हैं।
फौरन नाराज हो गई। हमारी बेटी होकर ससुराल की हिमायती बन जाओगी, ये हमें मालूम न था। हमने किस्सा मुख्तसर करने की खातिर कहा, अम्मा आपने क्यों तकलीफ की, हम तो खुद आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन करने वाले थे। अम्मा आवाज में कमजोरी लाते हुए बोली, चंदा क्या बताएं, आजकल हमारे इख्तिलाज कल्ब बहुत बड़ा हुआ है। तुम दोनों बहनें आ जाओगी तो तुमको देखकर कुछ जी को करार आ जाएगा। हमने कहा, अम्मा इख्तिलाज कल्ब में कुलकंद बहुत मुफीद होता है, आप निहार मुंह सेब का मुरब्बा भी खाया करें, जी को करार आ जाएगा। गुस्से से बोली, है खाक डालो मुंह में कुलकंद और सेब के मुरब्बे पर, वो तेहरा खाते हैं, हमारे जी को तो तुमको देख के करार आएगा। आंखें तरस गईं अपनी बच्चियों को देखने से। कल इतवार है, तुम्हारी अपिया भी आएंगी, तुम भी आ जाओ। हम दुल्हन से देगी कोरमा और पुलाव पकवा रहे हैं, दुल्हन रात को खीर जमा कर फ्रिज में रख देंगी। हमें अच्छी तरह याद है, हम पिछले इतवार को भी अम्मा की आंखें सेकने गए थे और अम्मा ने भाभी से कोफ्ते और बिरयानी बनवाई थी और मीठे में कस्टर्ड। आज का मेन्यू बदलकर हमारी आमद को महमूज दे रही थी। हमने कहा, भाभी पर याद आया, भाभी की अम्मा का भी तो पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, अब उनकी तबीयत कैसी है? झट से बोली, ए कौन निगोड़ मारा, पित्ते का ऑपरेशन भी कोई ऑपरेशन है? आजकल तो डॉक्टर एक सुई चुभोकर पूरा पित्ता बाहर निकाल लेते हैं। और हमारी समधन ने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया जो यूं ढोल लेकर पीट रही हैं? हमारे शहर में तो हर दूसरा शख्स बगैर पित्ते के फिर रहा है। लोग तो आजकल शौकिया पित्ता निकलवा देते हैं। ना बांस रहे ना बजे बांसुरी। इसके साथ ही उन्होंने बगैर पित्ते वालों की एक फहरिस्त सुनाना शुरू कर दी। अभी उनकी फहरिस्त नामुकम्मल ही थी, हमने अम्मा को टोक दिया, अम्मा इसका मतलब है जब से भाभी की अम्मा का ऑपरेशन हुआ है वो उनको देखने नहीं गई हैं? वो मजे से बोली, ए चंदा तुम भी हद करती हो, अब कोई अपना घर छोड़कर रोज रोज मैके के चक्कर तो नहीं काट सकता। औरत का असल मुकाम उसका घर होता है और हमें अम्मा के फरमूदात से इख्तिलाफ मुमकिन ना था कि सास कभी मां नहीं बन सकती। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा निशात साहिबा। क्या रवा और क्या मतलब घरेलू निहायत ही हमारे सामने एक तस्वीर है तकरीबन हर दूसरे घर की तस्वीर है। हाँ, ये तो है, ऐसा ही है, सास तो कभी मां नहीं बन सकती। जी हम भी सास हैं, लेकिन हम भी सास हैं, दो बहुएं हैं हमारी, हम सास हैं, दो बहुएं हैं हमारी। ये तो आपकी बहुओं से मिलके पता चलेगा कि वो क्या कहती हैं। अरे भाई, अगले पार्टिसिपेंट को हम बुलाने जा रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया निशात यास्मीन साहिबा। शुक्रिया। तो हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं नजीब अहमद नजीब साहब, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, दक्कन से है। संजीदा और मज़ाहिया शायरी करते हैं, नातगो शायर भी हैं, बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हैं, टेलीविज़न के लिए वॉइस ओवर भी देते रहे हैं और कुदरत ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है। इन दिनों शिकागो में मुकीम हैं। नजीब अहमद साहब अपना पुरलत कलाम पेश करें। जी नजीब अहमद साहब। नजीब अहमद साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? आपका माइक बंद है नजीब साहब, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। बेहद शुक्रिया अज़रा वसीम साहिबा, आपकी निज़ामत ने आज के प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए हैं। दरअसल ये प्रोग्राम्स सामईन, शोराए कराम और नाजिम, इन तीनों का वजूद एक तिपाही की मानिंद होता है और ये तिपाही में इम्बैलेंस हो जाए तो प्रोग्राम जो है नाकाम हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शुरू से आप जिस अंदाज में प्रोग्राम कामयाबी की जमानत। मैं इस प्रोग्राम के सारे मुंतज़मीन को और जो अहबाब इसमें मुलविस हैं हदीय तबरीक पेश करता हूँ कि आपका ये कारनामा उर्दू वालों के लिए काबिल तक़लीद है। ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैं अपनी बात पर आता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ। मैंने गालिब के मिसरे पर गिरा लगाई है, नक्श फरियादी है किसकी ये तहरीर का। इस पर मैंने गिरा लगाने की कोशिश की है। अब मुलाहिज़ा फरमाइए। शायरी वो भी मुरस्सा, रक़्स है शमशीर का। वाह वाह, शायरी वाह वाह, बहुत अच्छा मतलब। शायरी वो भी मुरस्सा, रक़्स है शमशीर का। एक जमाना आज कायल है मेरी तहरीर का।
उनके डैडी ने बिलाखर फैसला कर ही दिया। फैसला कर ही दिया। उनके डैडी ने बिलाखर फैसला कर ही दिया, उनके मेरे दरमियां दीवार की तामीर का। उनके मेरे दरमियां दीवार की तामीर का। घर बुलाते हैं रकीबे रूसिया को रात दिन। घर बुलाते हैं रकीबे रूसिया को रात दिन। घर बुलाते हैं रकीबे रूसिया को रात दिन, यूं मजा लेते हैं मेरे इश्क की तबखीर का। तबखीर का, अरे वाह 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 वाह। शायरी करते हैं लेकिन बहर से हैं दूर दूर। बहर से दूर दूर। शायरी करते हैं लेकिन बहर से हैं दूर दूर। एक मिसरा तीर का तो दूसरा है मीर का। क्या बात है। एक मिसरा तीर का तो दूसरा है मीर का। कल तलक जन्नत नशा थी, आज है दोज़ख नशा। हर जुबां पर तस्करा है वादी कश्मीर का। क्या बात है। कल तलक जन्नत नशा थी, आज है दोज़ख नशा। हर जुबां पर तस्करा है वादी कश्मीर का। एक शब गालिब ने उनके ख्वाब में आकर कहा। एक शब गालिब ने उनके ख्वाब में आकर कहा, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर। वाह वाह वाह। दूसरा मिसरा कहाँ इस्तेमाल हुआ। बहुत उम्दा। एक शेर इस तरह हुआ है कि उनके दुल्हे से भी हमने दोस्ती कर ली मगर। वैसे भी हमने दोस्ती कर ली मगर। उनके दुल्हे से भी हमने दोस्ती कर ली मगर, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। वाह हर पै करे। बहुत अच्छे नजीब साहब, बहुत अच्छे। शुक्रिया क्योंकि मैं हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम हैदराबाद वालों ने कुछ ऐसे अल्फाज को जो है अदब में सिफा दिया अल्फाज का कि वो अल्फाज सिर्फ हैदराबाद में चलते हैं और कहीं नहीं चलते। मसलन कैकू, क्यों का मुखफिफ है। क्यों कैकू। हाउ मीन्स जी हाँ। नक्को। तो मैंने कल एक जो है लतीफ़ा सुनाया था। कल जो हज़रात गैर मौजूद थे उनके लिए आज फिर दोहरा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तानी अहबाब की अक्सरियत है, इसलिए सुनाना भी ज़रूरी है। एक पाकिस्तानी साहब हैदराबाद तशरीफ लाए और जो है घूमने निकले। उन्हें सालारजंग म्यूजियम देखने जाना था। तो बाहर निकले और रास्ते में एक साहब को रोके और उनसे पूछने लगे कि जनाब क्या ये रास्ता सालारजंग म्यूजियम जाता है। उन्होंने कहा हो। समझ में नहीं आया हो क्या। ये हाँ है या ना है इनकी समझ में नहीं आया। कुछ दूर बढ़े एक और साहब से उन्होंने सवाल किया क्या ये रास्ता सालारजंग म्यूजियम जाता है। उन्होंने कहा हो। फिर परेशान हो। तीसरे साहब से जब उन्होंने यही सवाल किया तो उन्होंने कहा जी हाँ जाता है। अरे बड़ी हिम्मत है इनको, मैं सिराते मुस्तकीम पे चल रहा हूँ। तब फिर उन्हें रोके, फिर उनसे सवाल किया कि भाई आपसे सवाल करने से पहले मैं 2 साहिबीन से सवाल किया था। उन्होंने कहा हो और आप कर रहे हैं जी हाँ। ये हो और जी हाँ का क्या चक्कर है। उन्होंने समझाया कि यहाँ के पढ़े लिखे जाहिल अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हो बोलते हैं और जो तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे होते हैं जी हाँ क्या। अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं। हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हैदराबाद में इसी तरह एक लफ्ज चलता है मियाँ। अरे क्या मियाँ, क्या मियाँ। जैसा हम लोग जैसा साईं बोलते हैं, समझिए उस तरह। तो मैंने मियाँ की रदीफ बांधी है, शेर हाजिर करता हूँ। जहाँ में सबसे निराला मेरा सनम है मियाँ। जहाँ में सबसे निराला मेरा सनम है मियाँ, जो अपनी ज़ात मुबारक में एक सितम है मियाँ। जहाँ में सबसे निराला मेरा सनम है मियाँ, जो अपनी ज़ात मुबारक में एक सितम है मियाँ। शरीर और शूख है, चंचल है, दम में दम है मियाँ। दम में दम है मियाँ। दम में दम मत करो बोलते हैदराबाद वाले। दम में दम यानी बेजार मत करो का मतलब रहता। ये खास अल्फाज हैं हैदराबादियों के। शरीर और शूख है, चंचल है, दम में दम है मियाँ।
सुरीली तान है, म्यूजिक है, एक रिदम है मियाँ, सुरील है, म्यूजिक है, एक रिदम है, उसे हटाओ नको और मुझे भी रहने दो, उसे हटाओ नको मुझे भी रहने दो, मेरी तरह से वो चार्मिंग है, हैंडसम है मियाँ, चार्मिंग है, हैंडसम है मियाँ, सुना है लोग सभी आ गए हैं फेवर में, सुना है लोग सभी आ गए हैं फेवर में, जो प्रॉब्लम है तो पप्पा से प्रॉब्लम है मियाँ, जो प्रॉब्लम है तो पप्पा से प्रॉब्लम है मियाँ, मैं घर बसा के हिमाकत तो कर चुका लेकिन मैं घर बसा के हिमाकत तो कर चुका लेकिन ये बात तय है कि घर में मचे उधम है मियाँ, ये बात तय है कि घर में मचे उधम है मियाँ, मैं खुश ताम तो वो भी है खुश खुराक नजीब, मैं खुश ताम तो वो भी है खुश खुराक नजीब, कभी समक है डिनर में कभी लहम है मियाँ, कभी समक है डिनर में और कभी लहम है मियाँ। बेहद शुक्रिया, मैं मोबाइल की जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मसरूर कुरैशी साहब, आप सुन रहे थे? जी जी सुन रहा हूँ जनाब। बहुत खूब जी आज़ाद साहब। बहुत खूब। नजीब अहमद नजीब साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब हमारे अगले मेहमान हैं नासिर महमूद मलिक साहब। लाहौर से इनका ताल्लुक है नासिर साहब का, और अंग्रेज़ी और उर्दू अदबियात में मास्टर्स की डिग्री इन्होंने हासिल की है। इनकी किताब मिज़ाह कबीरा मंजरियाम पर आ चुकी है। रोज़नामा नई बात में भी कॉलम लिखते हैं। जी नासिर महमूद साहब, ज्वाइन करें हमें। जी जी मैं बोल रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी हम आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत मजा, जी बहुत मजा आया आप लोगों को सुन के, और इतना अच्छा कलाम माशाल्लाह, खासतौर पे नजीब साहब जी, रियली मैं आई एंजॉयड दैट। ये छोटा सा एक मेरा मजमून है और पेश खिदमत है। मजमून का उन्वान है, ये मेरी कार के बारे में था। कार मेरे पास रही मेरे इस्तेमाल में। अच्छा, जरा ऊंची आवाज में पढ़िए नासिर भाई, जरा ऊंची आवाज में। आवाज बहुत हल्की है आपकी। जी ठीक है जी। ऐसा थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए, थोड़ी सी आवाज हम लोगों को कम आ रही है। मजमून का उन्वान है हम के ठहरे अजनबी। हम के ठहरे अजनबी, ठीक। हम जी अपनी 88 मॉडल FX कार की फरोख्त के लिए मैंने एक दिन पहले इश्तिहार दिया था। आज इतवार का रोज था, छुट्टी थी। चुनांचे सुबह सुबह मैंने गाड़ी को नहला धुला कर गैराज में खड़ा कर दिया और किसी मुनासिब खरीदार का इंतजार करने लगा। गाड़ी पर नजर पड़ी तो मेरी तबीयत उदास हो गई। गाड़ी के साथ एक तवील रफाकत खत्म होने को थी। अगरचे ये कार मेरे लिए किसी आराम और सुकून और सुख का बायस कभी भी नहीं रही, बल्कि दौरान सफर अक्सर और बेशतर ये भाग भरी कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रही।